3 का A, पेपर 7, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर स्पेस? प्रूव दैट, इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है, प्रूव दैट कंप्लीट हाउसड्रॉप स्पेस इज रेगुलर स्पेस। तो फर्स्ट में डिफाइंड रेगुलर स्पेस कर रहे हैं, ए टोपोलॉजिकल स्पेस xt is said to be regular जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज हो गया था, रेगुलर इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी T-closed set F and every point P does not belong to F, there exists T-open sets G and H such that F subset of G P belongs to H and G intersection H equal to R. Proof में है, now we have to prove compact hausdorff space is regular. यानी कंपैक्ट हाउसड्रॉप रेगुलर में जाना चाहिए। प्रूफ में लेट ए टोपोलॉजिकल स्पेस xt इज कंपैक्ट hausdorff ठीक है। अब इसमें से 1 बाय 1 कंडीशन को ब्रेक की, ये हाउसड्रॉप है, रेगुलर दिखाना है, तो हाउसड्रॉप के कंडीशन को पकड़े पहले। Since a hausdorff space is a T1 space, पिछले वाला भी क्वेश्चन में लिखे थे, हाउसड्रॉप है तो T1 है, जब T1 है तो T2 है सर। It is suffice to show that xt is regular. Let F be a T-closed subset of X and P belongs। सर वो सफिशिएंट है या सफिशिएंट है? नहीं, SUFFIC सफाइस, SUFFIC। ओके सर।
belongs to X such that P does not belongs to F. P does not belongs to F. That इसका मीनिंग क्या हुआ? P belongs to X minus F तो है ही. सफिस का मतलब क्या हुआ? R सफिस का मतलब क्या हुआ? इट इज सफिस टू. सफिस सफिशिएंट से ही बना है. सफाइस सफिस में सफाइस कहा जाता है. अब देखिएगा इंग्लिश मीनिंग क्या होता है. इट इज सफाइस टू शो दैट मीन सफिशिएंट कंडीशन का ही है. हाँ, उतना इंग्लिश हमको नहीं आता है कि हिंदी उसका मीनिंग कहा दे. उसी वर्ड में है. It suffices to show that X is regular. Let F be a T-closed subset of X and P belongs to X such that P does not belongs to F. That is, P belongs to X minus F. Since X is a horse drop for each X belongs to F, there must exist T open set GX and HX such that P belongs to GX, X belongs to HX. Belongs to F, X belongs to F, there must exist T open GX and HX such that P belong कर रहा है GX में, X belong कर रहा है HX में, and GX intersection HX है. आप समझिए बात को. क्या लिखा हुआ? P belongs to F कर रहा है, P X minus X है, P G X में हो गया तो क्या हो गई? यदि G आप देखते G X ओपन है, G X का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? क्लोज हो गया. P इसमें है तो उसे कॉम्प्लीमेंट में नहीं है. द कलेक्शन C HX X belongs to F is T open power of F. Since F is closed, F is T closed subset of, अब पहले से दिया हुआ था कॉम्पैक्ट स्पेस
एक्स, कंपेक्ट स्पेस एक्स है तो कोई कवर होगा तो फाइनाइट कवर तो होता ही होगा। इट फ्लोज दैट मीन्स कोई भी कंपेक्ट है उसका सबसेट कंपेक्ट ही मिल जाएगा, कोई उससे आपत्ति नहीं है। इट फ्लोज दैट F is compact F is compact रीजन में because every closed subset of compact space is compact। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एवरी नीचे लाइन है बिकॉज एवरी क्लोज सबसेट of compact space is compact means ये F पहले से क्लोज है और compact X का compact है, लिखा हुआ दिया ही हुआ है X is compact स्टेटमेंट में, ऐसा एजुम्पशन ही है। Hence compact हो गया, F कंपेक्ट है, क्या मिलना चाहिए? देयर एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर तो है इसके पास। Hence there exists a finite number of points x1, x2, x3 and so on xn in F such that F contain union HXI I equal to 1, 2, 3 and so on and that implies and let H equal to union of GXI HXI, ठीक है। ये F ऐसा HX का कलेक्शन है जो F का मेंबर है ना। F में ये सब पॉइंट आ गया आपको x1, x2, x3, xn, तब ये जो HX आता HX1, HX2 इस तरह का पॉइंट आता F इज निश्चित रूप से इसका सबसेट हो जाएगा। देख रहे हैं HX को XC का मेंबर लिखे थे ना, F is subset of HXI, that means H is equal to union HXI, I equal to 1, 2, 3 से लेके n तक and G is equal to union of GXI then P कहाँ का मेंबर हुआ? मेंबर ऑफ G since P belongs to किसी भी GXN में तो आना चाहिए था। For each XI that means GN H क्या हो गया? This is open है, union open है, that implies G and H
G and H are two open set such that G intersection H equal to 5. Otherwise, Gx K intersection H xk intersection not equal to 5 for some xk belongs to M. This is contradiction. Hence, thus two open sets G and H such that P belongs to G, F subset of H, and G intersection H equal to 5. That means this is condition of regular. This is condition of regular. That implies XT is regular. बनाओ सॉल्व के लिए बोलो ये क्या यहाँ इसलिए नहीं पी रहे हैं थ्री का बी दिक्कत हो रहा है बैठने में हाँ ऐसे ही उसको झुके बैठ जाओ टेबल पर रख के दूसरा कुर्सी इधर बैठ जाएंगे सर इधर ही बैठ जाएंगे देखने में तो अच्छा है हाँ देखने में तो सही है वो कुर्सी बहुत छोटा हो जाएगा वही ले लीजिए इधर आ जाओ तो इधर कुर्सी दो ही छोटा वाला अपने ही होगा स्टूल लेना है रखने के लिए ठीक है कोई समस्या नो सर चलिए 3B पर 3B का अच्छा क्वेश्चन है जैसे आप prove that every compact subspace of the real line is closed and bounded
prove that every compact subspace of real line is closed and bounded. ये प्रूफ देखने से पहले थॉट तो लिख ही दीजिएगा और इसमें एक एग्जाम्पल भी लगा दीजिएगा। आप एग्जाम्पल कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 10 का ए देखिए, 10 का ए नोट्स निकालिए। 10 का ए क्या? हाँ मैं दिए हूँ। अभी कहे कि अभी इसी पेपर का 10वां का एक क्वेश्चन देखो। सेम क्वेश्चन 10 का ए है नोट्स में। 10A पेपर 4 में, पेपर 4 का 10A का क्वेश्चन नंबर देखिए। उसी क्वेश्चन को ये भाषा में लिख करके वहाँ एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करना था, उसी को जनरल बात में प्रूव किया है। फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे ना? 0 से 1 उसमें कह रहा है दिस इंटरवल 0 to 1 एट ए इक्वल टू 0 to 1 है, यह कम्पेक्ट नहीं है ना? 0 to 1 कम्पेक्ट नहीं है, जबकि सेट बाउंडेड है या नहीं है? सेट बाउंडेड है। जो भी x a का मेंबर है या 0 से बड़ा और x 1 के बीच में है, दैट मीन्स सेट A इज बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड तो है बट उस थ्योरम में था कम्पेक्ट नहीं है। कम्पेक्ट नहीं है तो इसमें निकाले थे कि इसको कंटेन करने वाला क्या निकाले थे? याद है कुछ? A contain union 1/n 1 greater than 2 से लेके इन्फिनाइट तक का। ये रियल लाइन पे शो किए थे। पूरा हम 10 का ए रिवाइज करा रहे हैं, बस उसके ग्राउंड पे लिख देंगे और दूसरा बताने कोई रास्ता नहीं है। ये आप लेके आए n इक्वल टू 2, ये पहला सेट हो गया 1/2 से लेके 1 तक। n इक्वल टू 2 था तो दूसरा सेट n इक्वल टू 3 रखते क्या होता? ये कहीं 0 है, ये पहला लिखते ये 2 दैट मीन्स 1/2 से 1 तक। ये 3 1/3 से लेके 1 तक। ये 4 1/4 से लेके 1 तक। ये 5 1/5 से लेके 1 तक। मीन्स A2 A3 में है या नहीं है? A2 का एवरी मेंबर A3 में है सर। है मीन्स 1/, इधर है 1/3 इसके पीछे होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है। ये इतना ही मेंबर A2 का है, ये A3 है। अब 4 लिखते यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4 हो जाता, ये 5 हो जाता, ये 6। इस तरह से बढ़ते बढ़ते इधर आ गए। जब n टेस्ट को इन्फिनाइट कर रहा था तब यह लिमिटिंग वैल्यू हो गया 1/n। मीन्स ये n निकालते लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, इसका वैल्यू 0 से लेके 1 तक आया था। दैट मीन्स लिमिट 1/n 1। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया,
ए को कवर करने वाला फिगर नहीं आ रहा है तो क्या फिगर नहीं आ रहा है, फिगर खाली बहुत आवाज आ छोटा रहा है। है, बहुत छोटा है। आप 10 का आ रहा है फिगर तो 10 का ए प्रीवियस क्लास आप निकालिए उस नोट्स को। तो पहले ही बोले कि 10 का ए आप प्रीवियस क्लास का निकालिए, नोट्स में भी है और आपको समझाए भी ग्राफ बना करके, सेम क्वेश्चन है। ये 0 है, ये 1 है। ये पहला पॉइंट रखते A2 हुआ 1/2 से 1/3 तक पॉइंट लिख के ए यहाँ से लेके यहाँ तक A3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओपन में। फिर आते 1/4 ए यहाँ से लेके यहाँ तक A4 रिप्रेजेंट हुआ है। ठीक है, ऐसे करते करते n टेंस टू इनफाइनाइट तक का मेंबर ले आते हैं, 0 से लेके 1 तक। एस 0 1 सेट कंटेन यूनियन 1/n 1 n इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट। देखिए अब ये कहे थे कम्पैक्ट होने के लिए ये क्या कहलाया, कवर, दिस इज ओपन सेट है ना, ओपन इंटरवल ओपन सेट, दिस इज कवर, बट इस कवर का कोई फाइनाइट कवर नहीं हो पा रहा है। मीन्स कोई इसका फाइनाइट नंबर का सेट ऐसा नहीं आएगा कि इस ओपन को ढक दे। ठीक है, सो दिस 0 1 इज नाउ कंपेयर। हुआ क्या, हमको लेना क्या था कि दिस सेट इज बाउंडेड, दिस सेट इज बाउंडेड बट नाउ कंपेयर। यहां लगा हुआ है कि प्रूव दैट एवरी कंपैक्ट सब स्पेस ऑफ ए रियल लाइन इज क्लोज एंड बाउंडेड। बाउंडेड भी होना चाहिए और क्लोज हो जाए, तब कहेंगे वह कंपैक्ट है। जैसे आप इसी इंटरवल के जगह ए के जगह अब रखिए, एक हो गया है ना। इसमें ऐसा क्यों हो रहा था, ये अभी जो देख के आए इसमें ऐसा इसलिए हो रहा था। ठीक है, कंपैक्ट वहां कॉम्प्लीमेंट के सेंस में, कॉम्प्लीमेंट को आप छोड़ के देखिएगा तो लिमिट पॉइंट का डेवलपमेंट है। ये इसका लिमिट पॉइंट जो 1/n लाइन थे वह 0 था और 0 सेट में नहीं था। ठीक है ना, 0 सेट में नहीं था। लेकिन कल और चर्चा किए थे, ये जो 0 से लेके 1 तक लेके आ रहे हैं, इसका अंदर का पॉइंट क्या पॉइंट कहलाया था, इंटीरियर पॉइंट। सभी इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट तो बन रहा है, बट बाउंड्री पॉइंट इज नॉट लिमिट पॉइंट। 0 के क्रॉसपोंडिंग नेबरहुड तैयार करते तो इस तरह का नेबरहुड मिलता जो ये इस सेट में कंटेन नहीं कर पा रहा है। पिछले क्लास में लिखे थे हम ये सब चीज कि a 1/n का लिमिट पॉइंट 0 निकाले, 0 माइनस इप्सिलॉन 0 प्लस इप्सिलॉन दैट नाउ सबसेट ऑफ 0 1। क्योंकि 0 का पीछे का नंबर भाग गया, गायब हो गया, सो 0 इज नॉट लिमिट पॉइंट। सेट बाउंडेड हो और उसका सभी लिमिट पॉइंट सेट के अंदर में हो तब वह क्लोज कहलाता है। अब 0 1 लेके आ गए, यह क्लोज इंटरवल है, यहां से यहां तक तो कोई बात नहीं। अब जो इसका लिमिट पॉइंट निकालते 0, ये कहां हो गया, सेट में है एस लिमिट पॉइंट 4। इस बाउंड्री का निकालिए दैट आर कंपेक्ट। यानी कोई सेट कंपेक्ट है रियल लाइन पर तो वह सिंपली तौर पे क्लोज इंटरवल ही होगा। क्लोज इंटरवल मीन्स कंपेक्ट। अरे भाई देखिए ना, इसको ढकना है आपको, यहां से यहां तक ही ढक सकते हैं ना। एक लेंथ का आप कोई टुकड़ा ले लीजिए, इसमें से रख दीजिए, पूरा कवर हो गया।
कोई पॉइंट इसका खाली नहीं था, एकदम एग्जैक्ट वन का रख दीजिए, कवर हो गया। और जैसे आप ओपन छोड़िएगा, मोबाइल का ढक्कन उनकन देखे ना, कवर पैक कर रहे हैं, पैक करना मीन्स कवर। मोबाइल में अपर बाउंड्री लेते, ये सरफेस है आपका, इसको टच करने वाला सेम साइज का, मान लीजिए मोबाइल का साइज है 3, 4, 5, क्यूबाइड स्ट्रक्चर है, क्या इस साइज का ये आप आयरन मटेरियल का बॉडी बना दीजिए। मोबाइल का भी साइज ये है और उसका कवर करने वाला इंस्ट्रूमेंट भी इस साइज का बना दिया आयरन से, क्या इसको इस साइज से कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा लेना, नहीं कर सकते आप। उस बड़ा होना होगा, बड़ा होना होगा सर, बड़ा होना होगा, बड़ा होना होगा तो क्या बड़ा होगा? तो आप पूछिए, या मोबाइल खोले हो तो देखिए क्या किया। अब इसमें हम क्या किए, 3, 4, 5 है, 4, 7, 9 का ढक्कन लगा दिए, क्या कवर कर पाएंगे? अब क्या उसमें देखिएगा क्या करता है, इतना बड़ा हो जाएगा मोबाइल। रखिए, आ रहा है कहीं रास्ते में, जर्क लगा, पता चला मोबाइल का स्क्रीन ही खराब हो गया, अप डाउन होगा। बहुत उसमें नहीं किया तो फोम उठ के टाइट किया जाता है, स्पेस लाए, सेम साइज में पहुंचाए। तो मीन्स ऐसा एप्रोप्रिएट मटेरियल तैयार करने का प्रयास करता है कि मोबाइल के प्रत्येक सरफेस पर वह टेंजेंट का बिहेवियर कर जाए, है ना। ऊपर में जैसे ये सरफेस है, इस पे पाइप हो जाना चाहिए था। यदि वह कवर से, ढक्कन से, इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो पा रहा है तो बीच में मटेरियल है, क्योंकि अंदर में मोबाइल का कवर है, स्क्रीन का शीशा लगा हुआ है, उसको सेफ रखने के लिए उस तरह का इंस्ट्रूमेंट रख दिए। मीन्स जो भी साइज का बनाए, ये ऑब्जेक्ट देने के बाद उस साइज का कवर तैयार कर लिए। बस देखिए 1 सेंटीमीटर का था, ये 1 सेंटीमीटर का रख दीजिएगा, कवर हो जाएगा। यानी जो क्लोज सेट है उसको कवर करना आसान है, या कवर होगा, और क्लोज नहीं है, कवर करना एडिशनल कोई तर्क लगाना होगा। जैसे मोबाइल में लगाए, इससे कम का ढक्कन लीजिएगा, नहीं होगा, इससे कम का कवर लीजिएगा। अब इससे जस्ट बड़ा लेना होगा, जस्ट बड़ा लिए, फिर 3.1, 4.1, 5.1, देखिए अब हो जाएगा। कहीं इसमें हो गया तो कोई कहे क्या ऐसा नहीं हो सकता, 3.09, 4.09, 5.09 और आप पर है। और कहीं ये आप कवर मान लिए गोल्ड का बनता हो, इतना वॉल्यूम करने में कितना प्राइस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में वह आइडियल सिचुएशन खोज के निकाला कि किसी ऑब्जेक्ट को कवर करने का क्या टूल हो सकता है, तब पता चला कि उसका फ्लो आपको पता हो जाता, दोनों पॉइंट और अंदर का सभी पॉइंट सेट में आ जाएगा, तब उसको क्या, तब आप कवर कर सकते हैं। अदरवाइज that never possible to cover to exact that object। हो सकता है उसमें आप एडिशनल सोर्स लगा करके कर रहे हैं, और लाइफ तो एरर पे ही डिपेंड है ना, मैथमेटिक्स पे तो है ही नहीं। मैथमेटिक्स के आइडियल सिचुएशन से चल रहा है, वो सर्वाइविंग लाइफ है, वह नहीं हो सकता। आइए थ्योरम पर, ये क्या कोई बात नहीं है, और इसमें क्या बात है लोग। क्या हो गया? चलिए प्रूफ पे एक मिनट।
इसमें सर तो एग्जाम्पल भी लिख देंगे ये वाला में, कहने वाला एग्जाम्पल लास्ट में एग्जाम्पल ले लेंगे लिख करके, अभी तो समझाए वहां से। पहले शुरुआत में एग्जाम्पल लेंगे, लास्ट में लेंगे, पहले 3A का स्टेटमेंट में लिख देंगे। नहीं, पहले प्रूव कर देंगे। हम तो पहले ला करके सारी बात समझा दिए, उसी के क्रॉसपोंडिंग लिखना है। अब लिखना आसान है ना। तुम भी बड़ा बड़ा है सब नोट्स में तो। नोट्स में तो प्रोजेक्ट लिखा हुआ तो सब बात लाना होगा ना। Let A be compact subspace. Proof. Let A be compact नहीं होगा। इनकेस एक क्लोज इंटरवल रखिए, सारी बात लिख दीजिए। Let A be compact subspace. To show that A is closed and bounded. पहला पार्ट में कह रहे हैं A is bounded दिखाना है। क्या जूही कोई दिक्कत है जूही? जूही जी माइक ऑफ कर लीजिए। A is bounded. Consider a collection C G A belongs to A. That means GA equal to A belongs to A है। That means इसका नेबरहुड तैयार किए, ओपन A minus 1 A plus 1, कोई एप्सिलॉन का वैल्यू 1 रख दिए। ऑल वन स्मॉल का मीनिंग कतई नहीं है कि नंबर कौन सा पता नहीं आपको, 1 रखिए 1/2 रखिए, कॉम्प्लिकेटेड नंबर रखिएगा तो उतना टफ हो जाएगा कैलकुलेशन। इज an open cover of A का ओपन कवर है और A इज कम्पैक्ट दिया हुआ है। A इज कम्पैक्ट, सो फॉर एवरी ओपन कवर हैज finite subcover. इसका मीनिंग क्या? finite subcover है, मीन्स finite नंबर ऑफ पॉइंट मिलेगा। That is, there exists a finite number of points A1, A2, A3 and so on, An in A such that, आप देखो GA इक्वल टू ऐसा लिखे हैं तो GAI इक्वल टू AI माइनस 1 AI प्लस 1 लिख सकते हैं। और सभी पे है, उसके यूनियन पे भी है। दैट इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ
क्या लिख दें, यूनियन GAI इक्वल टू 1 से लेके n तक तो लिखे हैं GA1 यूनियन GA2 यूनियन एंड सो ऑन GAN। अब यह A1 A2 कहाँ का मेंबर है, ये जो मेंबर है कहाँ का मेंबर है, रियल नंबर का। रियल नंबर पे पूछ रहा है, A1 A2 AN रियल नंबर का है, तो रियल नंबर पे नंबर के बीच में क्या रिश्ता, ऑर्डर स्ट्रक्चर बड़ा छोटा तो होगा ही होगा। A1 A2 A3 AN में से कोई बड़ा छोटा होगा, ठीक है। Let M0 is maximum of A1 A2 and so on AN। इसमें जो सबसे बड़ा है उसको हम M0 कह रहे हैं। And a small M0 minimum A1 A2 and so on AN। Therefore ये सबसे बड़ा जो वैल्यू था, तब आपके पास जो एक इंटरवल बना, दो नंबर मिला M0, ये क्या हुआ A1 A2 AN में सबसे बड़ा M0 और इसमें सबसे छोटा M0, ठीक है। अब जो ये जितना इंटरवल कंटेन करेगा तो M0 -1 M0 +1 ये सारे के सारे इंटरवल इसमें आ जाएगा। देन यूनियन I इक्वल टू 1 से n GAI कंटेन M0 -1 M0 +1 और ये क्या है, A का है सबसे, ये इससे बड़ा A है, दैट इंप्लाइज A इज सबसेट ऑफ इसका क्या मीनिंग हुआ, therefore let x belongs to A, कुछ लिखना नहीं है, M0 -1 से बड़ा x M0 +1 for all x belongs to A। यही कंडीशन ऐसा हो गया, ये सेट बाउंडेड है ना, इस सेट का सबसे छोटा नंबर M0 -1, सबसे बड़ा नंबर M0 +1, सो सेट इज बाउंडेड, आपका प्रूफ हो गया। इसमें और ऑल एक्स बिलोंग्स ए है सर, ये आर है सर, ठीक है। ये दोनों बात पे सही है, क्लोज एक दोनों बात पे सही है। जब इसमें आप कोई छोटा ले रहे हैं, इसमें जो छोटा होगा उसी में कोई नंबर होगा ना, A1 पॉइंट तो है इसमें, है ना, A2 कोई पॉइंट है, तो दोनों बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक कर ले क्या, मान लेते हैं 1 2 1 2 2 पॉइंट हुआ, इसमें बड़ा हो गया 1 से, बड़ा हो गया 1 A2 हो गया, ये 1 - 1 2 - 1 हो गया 0 1 1 का 1 - 1 1 + 1
कंप्लीट हो गया। ये 2 + 1 ना, 2 + 1 होना चाहिए। ये 0 3 ये हो गया 0 1 0 2, दूसरा 2 को लिखे 1 और 3, तो 0 1 0 2 1 3। देखो क्या हो गया, 0 2 कहाँ से कहाँ पहुंचा, 0 2 A 1 3, ठीक है ना। A 0 3 0 3 तो पहले से पॉइंट पे था ना, 0 3 है ना, पहले से है पॉइंट पे। दोनों बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन क्लोज लिखो दोनों। बाउंडेड दोनों कंडीशन के लिए, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं जरा समस्या लगता है तो ओपन लिखो। क्योंकि ऊपर में हम दिखा लिए हैं कि वो सी से आ रहा था, क्लोज से ऊपर भी दिखा लिए, उसके क्रॉस में लिखे। आप तो नीचे भी जाओ, नीचे से बढ़ेंगे, जब कह रहे क्लोज बाउंडेड है, बाउंडेड तो है, चाहे ओपन में लिखे क्लोज, बाउंडेड तो नहीं जाएगा। जब क्लोज हो जाएगा तो अंदर में वो भी बात चल रहा है ना। सेकेंड पॉइंट में है टू शो दैट A is क्लोज। रियल एनालिसिस में एक और अलग से क्वेश्चन है, बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम है ना, बस वही बात सब लिखा हुआ है, नया कोई बात नहीं है लिखा हुआ। सर शायद है ये तो रियल एनालिसिस के पेपर में बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम लिखा हुआ है, वही बात यहाँ लिखना है। ये तो पता हो गया क्लोज बाउंडेड हो, सॉरी क्लोज हो गया, सॉरी बाउंडेड हो गया। आपको क्लोज निकालना है, मीन्स इस सेट का लिमिट पॉइंट होता इस सेट के अंदर ही बिलोंग कर जाए, दैट मीन्स क्लोज का केस लेके आते हैं। लेट ए बी नॉन इम्पीटी सबसेट ऑफ आर, भाषा में लिखा हुआ है, लेट ए बी नॉन इम्पीटी कम्पैक्ट, नॉन इम्पीटी कम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, है ना। लेट E be any point, E be any point of R minus A, means A complement का मेंबर P लिख रहे हैं। For each point, ये पिछला भी क्वेश्चन में यही करने के लिए कि कॉम्प्लीमेंट में नंबर लिए थे और एक उसका नंबर लिए थे। फॉर ईच पॉइंट Q बिलोंग्स टू A, ये पूरा रियल नंबर, A का रे कम्पैक्ट है, A है, A कॉम्प्लीमेंट, जैसे A आप लिखिए कोई सेट कम्पैक्ट का रे, तो कोई कम्पैक्ट होता तो इस तरह का मीनिंग आता होगा, 1 से 2 में लिख दिए, 1 से 2 लिख दिए, यानी कम्पैक्ट तो है ना, क्लोज और बाउंडेड है। अब इसका R माइनस A लिखते कितना होता है, माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन यूनियन टू इनफाइनाइट, यही है आपका। लेट P बी एनी पॉइंट ऑफ R माइनस A, P R माइनस A का कोई पॉइंट है, Q A का पॉइंट है।
पी ए कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है, क्यू ए का है। पी और क्यू सेम होने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं है। पी दो स्पेस का मेंबर हुआ, दैट मीन्स पी क्यू आर का दो डिस्टिंक्ट नंबर है, बिलोंग्स टू आर में तो है ही। पी क्यू आर में डिस्टिंक्ट नंबर है, तब तो सीधे कहां से डिस्टेंस फॉर्मूला तो काम कर रहा है, या कौन सी कंडीशन काम कर रहा है? P माइनस क्यू, ये कहीं P पॉइंट एस्टेब्लिश किए, ये कहीं Q, चाहे इधर लिखिए या इधर लिखिए। P के दो पॉइंट है, उससे उसका डिस्टेंस निकाले, कितना हो गया? P माइनस क्यू, इसका मॉडुलस कर देते हैं, आगे पीछे जो होता होगा। P माइनस क्यू, इसका हाफ लिए, मिडिल पॉइंट जो P पॉइंट और Q पॉइंट का, दैट डिस्टेंस सेड टू बी इप्सिलॉन क्यू। लेट जी क्यू इक्वल टू P माइनस इप्सिलॉन क्यू, P प्लस इप्सिलॉन क्यू। यहां से आ जाइए, ये हटा दिए, ये डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस है P माइनस क्यू, इसका आधा पॉइंट का डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक L इक्वल टू P माइनस क्यू, इसका आधा लीजिएगा A, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा? एप्सिलॉन क्यू, और यहां से यहां भी लीजिएगा एप्सिलॉन क्यू। हमें दोनों जोड़ के P माइनस क्यू हो गया, ठीक है। अब P को सेंटर मान करके नेबरहुड पैदा कर डेवलप कर रहे हैं, नेबरहुड ऑफ क्यू लिखे हैं, P माइनस इप्सिलॉन क्यू, P प्लस इप्सिलॉन क्यू। से यहाँ पे एप्सिलॉन क्यू कहाँ लिखे? P और Q का बीच का डिस्टेंस है ना, ये एप्सिलॉन क्यू जो है, मतलब P और Q का आधा डिस्टेंस है, मतलब आधा डिस्टेंस है। हाँ, आधा डिस्टेंस है, तो एप्सिलॉन क्यू का है, एप्सिलॉन P भी तो हो सकता है। नाम रखे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? आप P ही लिख दीजिए, यहाँ तो यहाँ लिखा हुआ है लेट, यहाँ तो लेट लिखा हुआ पीछे में, इस डिस्टेंस को हम एप्सिलॉन क्या आप P ही लिख दीजिए, X ठीक है, लिख दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। एंड एच क्यू क्या लिखती है? बताइए क्या लिखती है एच क्यू? क्या लिखती है आप?
यदि इस साइड में एक पॉइंट है तब तो ऐसा लिखा जाता हाँ है ना, और यदि ये हाँ, माइनस लिखते सर। हो जाता तो पी क्यू निगेटिव हो जाता, दैट मीन्स माइनस क्यू माइनस इप्सिलॉन क्यू है। माइनस क्यू माइनस इप्सिलॉन क्यू क्यू प्लस इप्सिलॉन क्यू। जोड़िए ना, देखो इसको नहीं होता, जोड़ो कितना है, p माइनस इप्सिलॉन क्यू, p माइनस क्यू बाई 2, दैट मीन्स 2p माइनस p प्लस क्यू बाई 2 आया था, और ए लेके आते p प्लस p माइनस क्यू बाई 2 कुछ थोड़े क्या है, तो ये क्या हो जाता है 3p माइनस क्यू बाई 2, इसी के बीच का पॉइंट है ना, एक इंटरवल ये तैयार किए, माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू करो यही आएगा, इसी बीच का कोई इंटरवल तैयार करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स दोनों के बीच में कोई पॉइंट कॉमन है, हो सकता है बहुत सारा बन जाए, लेकिन एक ऐसा नेबरहुड तैयार हो गया जो GQ इंटरसेक्शन HQ इक्वल टू 5, कॉमन नहीं है दोनों के बीच में। और साथ में B बिलोंग्स टू GQ में है या नहीं है, ये आप सिंपली यहां उठा के देखिए कि P माइनस इप्सिलॉन क्यू P प्लस इप्सिलॉन क्यू ये GQ है, और ये लिखा हुआ है Q, ये Q, ये माइनस Q माइनस इप्सिलॉन Q इसके पीछे Q प्लस इप्सिलॉन Q, इसमें Q है ना, that means P belongs to GQ और Q belongs to HQ। Clearly F HQ such that Q belongs to A is an open cover of A, that implies A is subset of union HQ. S is compact, S के जगह लिखना A, थोड़ा सा देखना यहाँ A लिख देना, A is compact and F is its cover। सर यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, जैसे GQ और HQ ले रहे हैं, ठीक है, तो GQ जो लिए हैं वहाँ P पॉइंट पे, तो P का इधर लिए हैं तो P माइनस एप्सिलॉन क्यू किए हैं P प्लस एप्सिलॉन क्यू, लेकिन HQ ले रहे हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में जाएगा तो इधर भी होगा ना सर,
क्यू माइनस एप्सिलॉन क्यू और क्यू प्लस एप्सिलॉन क्यू, ये होना चाहिए। ऐसा यहाँ ही दोनों होना negative- चाहिए, वैसा होना चाहिए। गारंटी दे दीजिए कि GQ और HQ में कोई कॉमन नहीं आया, वैसा बना दीजिए। आपको जो इच्छा बनाना है बना दीजिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हम उस कंस्ट्रक्शन में से एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करके आए हैं कि ऐसा जिसमें GQ और HQ में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अच्छा, कॉमन पॉइंट नहीं है। लीजिएगा तो हो सकता है उसमें कॉमन आ जाए, उस कॉमन वाले से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, ठीक है सर। आप नहीं होता तो इसमें नंबर सेट कर देना, PQ का वैल्यू 1 2 सेट करके और वैल्यू रख के देखना कि कोई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो बिना अननोन पे लिखा हुआ है ना। P के जगह 1 रख लीजिए, Q के जगह 2 रख दीजिए, उसमें एप्सिलॉन का वैल्यू 1 में 2 - 1/2 लेकर के चेक कीजिए आता है कि नहीं आता है। वैसा दोनों G और HQ फाइंड किए। देयर आर सेवरल नेबरहुड लिखा जा सकता है। उस नेबरहुड में से वैसा नेबरहुड ले रहे हैं जो G और H के बीच का जो नेबरहुड का कनेक्शन है, दैट आर डिसजॉइंट। ठीक। F is its open cover, that means F open cover है, that means F complement equal to F complement equal to HQ1, HQ2 and so on HQN, such that A contain union HQI I is equal to 1 से लेके L तक। लेट G इक्वल टू उल्टा लेकर के ऊपर वाला था बड़ा वाला पॉइंट, उसका एक छोटा इंटरसेक्शन ले रहे हैं। GQ1 इंटरसेक्शन GQ2 इंटरसेक्शन GQN एंड H लिए यूनियन HQI 1 से लेके N तक। क्या हो गया इससे आपको? दैट मीन्स A इज सबसेट ऑफ H का हो गया। और A सभी सिंस ईच ऑफ द सेट GQ कंटेन, ये सब में क्या था? P में P बिलोंग्स टू ईच GQI था, दैट मीन्स P बिलोंग्स टू G। That means GQI intersection HQI equal to 5। ये 5 हो गया। फिर that means G intersection HQI equal to also 5 है ना। प्रत्येक के साथ है, वही चीज डिटेल में लिखा हुआ है। यूजिंग 6 उसी को GH GS G सबसेट R-A, बस वही चीज को बार बार लिख करके 2-3 लाइन में लिखा हुआ है, एक ही चीज लिखा हुआ है। Hence that means showing that R-A is neighborhood of P। P का neighborhood R-A है। S R-A neighborhood of P हो गया। It proves that R-A is neighborhood of each of its point and hence R-A is an open set, therefore its complement is closed। ये complement closed हो गया ना बात। hence proof। अब छूटा कौन कौन क्वेश्चन करने के लिए?
4 नंबर सर। इसमें सर 6 क्वेश्चन हो गया ना? हाँ, और 6 क्वेश्चन हो गया। 4 करा देते क्यों सर? और भी करवाना है सर? 4 सब 4 खाली करा देते सर 4। इसमें हो गया आपका 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। 8 हो गया सर। हाँ, 10, 8, 7, 6 6, 5, 3 हाँ 3 भी हो गया। 7 हो गया। 6 क्वेश्चन हो गया ना सर? हाँ 6 हो गया। चलिए 4 भी कर ही ले। के बाद 9 भी कराना। क्या 9 भी करना है ना? 9 दे देंगे, कनेक्टेड लिखा हुआ है, रख ले। 6 करवा दिए हैं। तो 3 का बी कहाँ तक करवाएं? हैं? कंप्लीट हो गया है अभी, बी का भी हो गया। अभी तो 3 का भी करवाए ना। तो नोट्स में थोड़ा ज्यादा लग रहा है सॉल्यूशन। कहाँ ज्यादा लग रहा है? वही चीज नीचे में तो हम बता दिए कि ऐसे ऐसे करने के बाद सब लिखते चले गए। आप यहीं आकर के जी इंटरसेक्शन, ओके एक लाइन में जी इंटरसेक्शन फाइव लिख दीजिए, और जी इंटरसेक्शन एच फाइव है तो जी इंटरसेक्शन एस बी फाइव है, जी सबसेट ऑफ आर माइनस ए, तो 2 लाइन जहाँ से ओके सर। इंटरसेक्शन हाँ, एच हाँ। क्यू आई लिखे हैं उसी को 1 बाय 1 करके सबको दिखाते चले गए हैं। तो आप उसमें से ड्रॉप करके नीचे एक लाइन तरपा दीजिए, जी सबसेट ऑफ आर माइनस ए। ठीक है ना? वो तो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे लिख रहे हैं। ओके लिखा सर, हुआ ओके। है। हाँ वो सब स्किप कर सकते हैं। हाँ। हाँ ठीक है। चलिए 4A। एट का बी बताया ना आपने? हाँ हाँ सर बता दिए हैं। हाँ। For A, give an example of a topological space which is T1 space but not a T2। ऐसा एक T का एक एग्जाम्पल देना है जो T1 है बट नॉट T2 है। ठीक है, तो इसमें बताने वाला क्या मान ले ऐसा जरूरत पड़ा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का एग्जाम्पल लिए। कंसीडर द कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है, टाउ ऑन इनफाइनाइट सेट एक्स, देन द स्पेस एक्स टी इज T1। और उसी चीज को समझाया है कोफाइनाइट टोपोलॉजी वहां ली। इफ एक्स इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ एक्स, देन बाय डिफिनेशन ऑफ टाउ एक्स माइनस एक्स इज ओपन। क्या था याद है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी किसको कहते थे? पहला क्लास में लिखे थे कोफाइनाइट टोपोलॉजी का डिफिनीशन। रवि यस सर। किसको कहे थे? कि मतलब x जो है ना सर फाइव के इक्वल नहीं होगा, और टोपोलॉजी पे लिए थे ऐसा सर। नहीं कहते, ऐसा नंबर लिए थे कॉम्प्लीमेंट जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट था। हाँ हाँ कंप्लीमेंट फाइनाइट था, तो वो तो अंदर में चल रहा है, नहीं हो रहा है, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी का डिफिनीशन पहले बगल में लिख देना। यहाँ वही एग्जाम्पल है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है जो T1 स्पेस है, नॉट T2 स्पेस है। कंसीडर द
कोफिनाइट टोपोलॉजी T और एन इनफाइनाइट सेट X इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का पावर सेट कितना होता, यहीं से समस्या फंसता है। इनफाइनाइट सेट का पावर सेट, मान लेते हैं कोई सेट A में 100 मेंबर है, PA में कितना मेंबर 2⁴100। किसी सेट A में n मेंबर है, PA में कितना मेंबर 2 पे पावर है। ये सेट 3 में प्रूव करने के लिए है कि यह अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है। अभी तक तो आपको समझ में आ रहा था कि 2 का पावर कुछ भी नंबर करें फाइनाइट हो जा रहा है, 2 का पावर इनफाइनाइट दैट नॉट काउंटेबल, दिस इक्वल टू अनकाउंटेबल। यहां से सेट 3 अपना रोल प्ले करना। फाइनाइट टोपोलॉजी ले रहे हैं, कह रहे हैं X इनफाइनाइट पावर सेट में आता कितना मेंबर अनकाउंटेबल। उस अनकाउंटेबल मेंबर से ऐसा टोपोलॉजी आप डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा A ले रहे हैं, A सबसेट ऑफ X का सच दैट A कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। और AX कहां का मेंबर जाता, पावर सेट का। AX तो पावर ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ A व्हिच कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट टोपोलॉजी का कंस्ट्रक्शन है। देन द स्पेस XT इज T1। T1 स्पेस मींस, अब ये कहा क्या आए थे T1, 2 ओपन सेट मिलता G एंड H, देयर इंटरसेक्शन फाई मीन्स कोई भी आप उठा लो, फाई और X मिल जाएगा। अरे भाई फाई का कंप्लीमेंट X इनफाइनाइट है, आपको मीनिंग आ गया। If X is an arbitrary point of X का एनी arbitrary point है, क्या लिख रहे हैं, सेम चीज लिखा हुआ है, X is an arbitrary point of X, then by definition of tau a topology X minus X क्या होना चाहिए था, एक ओपन फाइनाइट है ना। अरे भाई X का, इस X का कंप्लीमेंट क्या होता है, X माइनस X, ये क्या होना चाहिए था फाइनाइट। X माइनस X ही ओपन यानी टॉ का मेंबर है। और ये X कैसा मेंबर है, कितना मेंबर आगे पढ़ा है, सिंगलटन मेंबर है। ये कौन सा सेट, क्लोज सेट। क्लोज सेट का कंप्लीमेंट ओपन, ये तो पढ़ के आए, पर कुछ कर क्लोज का कंप्लीमेंट S, thus every single subset of X is closed, hence the space is T1। मिल गया आपको। But this space is not T2 for this topology, no two open set can be defined। For suppose it possible G और H माने हैं, इंटरसेक्शन किए हैं, फिर हो गया। तो थोड़ा लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, बहुत आसान है ये। आया समझ में रवि? रवि हाँ सर, आया समझ में, या को फाइनाइट सब आ गया सर, आ गया सर। 4 का B तो बहुत छोटा है सर, उतना ही लिखना है। कितना लिखना था, अपने मन से कितना लिखोगे, बहुत करोगे तो कोफिनाइट का हम भेज देते हैं, कोफिनाइट पूरा लिख देना, और क्या। तो ठीक है सर, बहुत करोगे तो कोफिनाइट टोपोलॉजी लिखोगे, कोफिनाइट लिखोगे 1.5 पेज पहुंच जाएगा उसको प्रूव करने में। क्योंकि सर 8 नंबर का है तो ये बहुत छोटा है, मतलब 4 का B जो लिखा है। अरे भाई बड़ा पॉकेट से थोड़े कर दोगे कुछ से कुछ लिख करके। नहीं, ये बोल रहे सर नंबर क्या सर, छोटा है। छोटा है तो सही है सर, ये बोल रहे नंबर मिल जाना चाहिए, ये बोल रहे हैं मिल जाएगा। वो काटेगा, 2 ही नंबर काटेगा, 8 नंबर तो देगा ही।
क्या कोफनेट समझा दे, छोटा है तो बोलो। समझा दीजिए सर थोड़ा। हो रे सर समझे में देखिए पूरा हो रे समझाए नहीं पूरा। चलिए ठीक है, तो दोनों पार्ट इसमें छोटा क्वेश्चन लग गया है। नहीं सर, नंबर मिल जाएगा तब तो ठीक है सर, हम ये बोल रहे हैं नंबर आज मिल जाएगा तो ठीक है। नंबर लिख, एक बात को हमको जो तुम कह रहा है जो नहीं है ठीक है, आपको फनाइट आता है वो पीछे से ला करके कोफनाइट का डिफिनेशन लिखिए। आप कोफनाइट का डिफिनेशन बगल में लिख सकते हैं, रेफरेंस देके बीच में थोड़े लिख सकते हैं आप। हाँ ठीक है, बगल में लिख सकते हैं, बगल में लिख सकते हैं आप। छोड़ दीजिए सर। चाहिए कोफनाइट, छोड़ दीजिए सर। छोड़ दीजिए सर, छोड़ ठीक दीजिए। ठीक है, क्या करोगे तो हम खींच के भेज देंगे। टाइम बहुत हो गया सर। अगला पेपर का थोड़ा डिस्कस। 4 का बी देखिए, सेम चीज है जी। ये भी आप पढ़ के आए दूसरे क्वेश्चन से, आप उठाइए, सेम चीज लिखा हुआ है। कह रहा है प्रूव दैट ए फाइनाइट सबसेट ऑफ T1 स्पेस हैज नो क्लस्टर पॉइंट। चलिए क्लस्टर पॉइंट आज ही समझा देते हैं। लेट एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट ए बी ए फाइनाइट सेट, ए बी a finite set of x consisting n elements, say a1 a2 and so on an. Since the space is T1, since the space is T1, अब T1 है ये तो क्या होना पड़ेगा, क्लोज होना पड़ेगा। अब ये देखा है, since space is T1, then set A is closed and अब क्लोज है, क्लोज का जो लिमिट पॉइंट है या डिराइव सेट है वह ए के अंदर है, उसी पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट कहते हैं। कुछ नया बात लिखा ही नहीं है, केवल क्लस्टर लिख के लिख दिया है। तो क्लस्टर पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल। ऑल इट्स क्लस्टर पॉइंट but the set B1 is also finite. Also finite, hence closed, then x minus b is okay and contains no point of A different from A1. ठीक है ना? क्लस्टर पॉइंट मीन्स जिस पॉइंट को लेके आ रहे हैं, जिस पॉइंट को लेके आते हैं, जैसे x minus epsilon x plus epsilon minus x ये इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 हो जाए तब x को नेक्स्ट हाँ ठीक है, ये 5 हो जाए, ये क्या हुआ देखिए, एक और बात लेकर आते हैं कि आप 1 माइनस इप्सिलॉन 1 प्लस इप्सिलॉन, ये नेबरहुड ऑफ इप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 1 लिखा गया, ठीक है।
ऐसा हो गया तो इंटीरियर पॉइंट, यही इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहा था, इसमें से 1 को हटा देते हैं तो डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है। डिलीटेड नेबरहुड और उस पॉइंट के बीच में कोई सेट दूसरा कॉमन नहीं हुआ, तब उस पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट कहते हैं। मीन्स क्लस्टर पॉइंट ऐसा हुआ जिस पर बात कर रहे थे उसको छोड़ करके दूसरे के साथ आ रहा है, तब वह क्लस्टर पॉइंट हो रहा है। ठीक है ना? तो इससे B2 से A2 A3 AN की इनफाइनाइट नंबर हुआ, लेकिन A1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नेबरहुड तैयार हुआ ये इसके साथ इंटरसेक्शन करने पर 5 नहीं कंटेन कर रहा है, सो दैट आर क्लस्टर। ये है नो क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, होप टोपोलॉजी आप लिखिएगा। 1-2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन जो छूटा है, एक का ए एक का बी, एक का ए एक का बी, 2 का ए 2 का बी। ठीक है ना? हम 2 का ए बी में वेरी इंपॉर्टेंट में डालेंगे। एक क्वेश्चन एकदम ये भी रहेगा, हेरिडिटी एंड टोपोलॉजिकल है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना? बहुत बड़ा है। बड़ा है। 2 का ए बी ये बहुत बड़ा है सर। बहुत बड़ा, लेकिन क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब भी तो रहेगा ना सर? आए ये सब भी तो क्वेश्चन रहेगा। क्या? ये जो बताया सर ये सब भी तो रहेगा सर? हाँ, ये सब ही रहेगा। ये सब ये कहा था रे? इसमें से तो 3 गो तो कंफर्म हो गया ना, आपका 3 गो रहेगा। ठीक है, 3 गो, 3 आपका, जैसे 3 नंबर 6 नंबर और कौन सा था? 7 नंबर। 3 से 7 नंबर से जो भी हो, तीनों तो है ही। उसके बाद भी 5 मिल जाएगा, लेकिन कॉपी थोड़ा देखिएगा। अब सब वही सिलेक्ट कीजिएगा तो कॉपी वेट नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन अपने मेहनत से कोई एक बड़ा क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। पहला क्वेश्चन टोपोलॉजी में लिखिएगा, शुरुआत कीजिएगा काउंटेबल कम्पैक्ट 0-1 वाले से। उसमें बहुत हम थॉट लिखे हैं, उसी से लेकर के लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, एंड करें मीटिंग। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। कल हम लोग किस पेपर में बात करें? कल कॉम्प्लेक्स ही कर लेते हैं। ठीक है ना? कल कॉम्प्लेक्स ही शुरुआत है। सर कम्प्लेक्स। हाँ, 6 नंबर 6 पेपर, नंबर पेपर सी। सर रिकॉर्डेड वीडियो प्लीज डाल दीजिएगा ना। हाँ, इम्पोर्टेंट Recorded डाल देंगे। video मतलब हाँ, नहीं ठीक है, है, इम्पोर्टेंट डाल देंगे हम आपको। आप अपने से मिला लीजिएगा। 2020 का असाइनमेंट काम आप भेज देते हैं, 3 पर ही भेज देंगे। 2019 2021 से MSc फर्स्ट ईयर का जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट है, इस क्वेश्चन का प्रत्येक पेपर में 3 क्वेश्चन है, वह तीनों क्वेश्चन इस साल है। हाँ हाँ, समझ में आ गया? 3 तो पेपर 16-48 नंबर। ठीक है, तो हम भेज देंगे या हम लिख कर किसी में डाल देंगे, और क्या होगा, तो मिलाना पड़ेगा और क्या। ठीक है, सर पेपर 6 का पीडीएफ अपलोड है? नहीं अभी अपलोड हो जाएगा। बस सब कुछ हुआ है अपलोड, खाली हम मिला नहीं पाए, रात में स्कैन हुआ है, क्योंकि गड़बड़ हो गया था। तो ये फिर कीजिए, तो हम सोचे नहीं स्कैन करने के बाद आएंगे तब अभी अपलोड हो जाएगा आधा 1 घंटा के अंदर। आप 1 घंटा के बाद पेपर 6 और पेपर 7 का PDF निकाल सकते हैं। ठीक है सर, 9 का ये भी भेज दीजिएगा टोपोलॉजी का। ठीक है यार, ठीक है।
हाँ बोलिए। सर सर हाँ, बोलिए बोलिए। आया है सर, एगो आया था उसके बाद खुला नहीं।